Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to writing a chemical formula. Today we will start chemical equation. Chemical equation क्या है? There are definitely symbols of atoms and formulae for molecules of various substances. In a chemical reaction, one or more molecules of one or more substance undergo a change to produce new molecule as a result of exchange of constituent atoms. All the molecules involved in a chemical reaction may be represented by the formula. For example, sodium chloride react with silver nitrate in a solution to form silver chloride and sodium nitrate. This substance have molecular formula NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3 respectively. The above chemical reaction may be written as follow. Chemical equations क्या होते हैं बच्चा? Chemical equations में reactions होते हैं और products होते हैं. इस साइड जो होते हैं वो reactants होते हैं या एक से ज़्यादा दो चीज़ें react हो रही हैं और फिर वो इस साइड में हमको product provide कर रहे हैं, मतलब एक न्यू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस ऐड होकर एक न्यू सब्सटेंस को जनरेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल इक्वेशंस बन रही है. अब इसमें हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, दोनों को रिएक्ट किया. जो Ag है वो Cl के साथ रिएक्ट हो गया, AgCl बना दिया, NaNO3 के साथ रिएक्ट कर दिया. तो ये क्या बन गया, यहाँ पर बन गया सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया सोडियम नाइट्राइड बन गया. अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? This representation of a chemical reaction using symbols and formula of a substance involved a reaction is called chemical equation. अब जो chemical reactions है उसको हम symbols को यूज़ करके या formulas को यूज़ करके कोई new substance involve हो रहा है, react कर रहे हैं, उसको बोलते हैं chemical equation. In a chemical reaction, substance which undergo a chemical change are called reactant. अब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, चेंज होता है. सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज आर कॉल्ड प्रोडक्ट. जो उस रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. केमिकल इक्वेशन इज अ कंसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by means of symbols and formula of a react placed on the left hand side of a sign of equality or sign of an arrowhead and those of the product on the right hand side in the form of an equation. अब इसको किस तरीके से लिखना है, जो रिएक्शन साइड में है उसके बाद जो प्रोडक्ट के बीच में जो हम एरो साइन या इक्वालिटी का या फिर एरो साइन इंडिकेट करके हम एक इक्वेशन को जनरेट करेंगे. नाउ essentials of a chemical equations. A chemical equation has three essential characteristics हैं. What are they? It should be represented in actual chemical change. ये represent करते हैं actual chemical change को react करते हैं. ये balance होना चाहिए, ऐसे नहीं है इधर 2 molecules of AgCl है उधर product side में 1 AgCl है, तो ये balance नहीं है. वो balance होना चाहिए. अगर इधर 2 NaNO3 है तो इधर भी 2 NaNO3 ही होना चाहिए. The number of atoms of the various elements on the two sides of the equation must be equal. अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन एनी केमिकल इन विच दिस बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं अगर कोई बैलेंस एग्जिस्ट ना करे उसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन. It should be molecular होना चाहिए. The reactant and product should be represented as molecules. For example, gases like hydrogen, oxygen should be written as H2O2 respectively, not as H or O. इसको जो gases हैं उनको molecules में लिखना है H2O2, उनको H और O में represent नहीं करना है हमने. Writing the equations in word. अब words में ये था formulas के साथ, अब ये word में कैसे लिखना है. You may write an equation if all the reactants and products are known. In order to say that when zinc reacts with sulfuric acid, it forms zinc sulfate with a evolution of hydrogen gas. We write the chemical equation in word as. अब अगर words में लिखना हो तो वर्ड्स में लिखने के लिए जिंक लिखा हमने,
जिंक को किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, दोनों रिएक्ट होने के बाद क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन का साइन आ रहा है। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से। जब वो रिएक्ट किया तो उन्होंने बन गया जिंक सल्फेट, ZnSO4, अकेला क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। देखो अच्छा, अगर ये जिंक है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Zn ये इसके साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बनाए और हाइड्रोजन से अकेला रह गया, ये हो गया इवॉल्व। ओके बच्चा, in writing a chemical equation the reactants are always written first and the product from the sign of equality, the arrow near hydrogen indicate that is escape out। ठीक है, इक्वालिटी का साइन या फिर ऐसा साइन आपने डालना है। अब स्केलेटन इक्वेशंस क्या होते हैं बच्चा, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ अ पॉजिटिव साइन between them, similarly write the formula of product on the right hand side indicating with equality sign or an arrow, thus the skeleton equation of the above reaction between zinc and sulfuric acid is। अब skeleton equation Zn plus H2SO4 के जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया, यह है skeleton equation। ना बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। बैलेंस इक्वेशन के लिए इस साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही इस साइड भी प्रेजेंट होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट दैट द matter can neither be created nor destroyed, only a rearrangement of atom take place। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जो मास है ना तो वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर है जिंक अलग था, H2SO4 अलग था, तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये अलग रहेगा, तो रीअरेंजमेंट हो रही है एटम्स की। बट जो एटम्स है ना तो वो क्रिएट होगा ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। Got it? It is found that the product of a reaction be not allowed to escape from the reaction, the weight before and after the reaction remain the same। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर आयरन का वेट 56 ग्राम है तो प्रोडक्ट साइड में भी उसका उतना ही वेट होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज लुक, दिस इज अनबैलेंस इक्वेशंस विद देयर बैलेंस, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर Hg है, Hg क्या है, मरकुरी है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों को क्या किया हमने रिएक्ट कर दिया, तो ये HgO कंबाइन हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर कितने, ऑक्सीजन तो 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन 2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं इसको भी 2 बना दूँ, मरकुरी भी 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो इस सब में 2H 2G 2O, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो सब बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, 2Hg है। गॉट इट? अगेन Fe ये क्या है, आयरन है, Cl2 क्लोरीन है, और ये कंबाइन होके FeCl3 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये बैलेंस तो नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो आयरन को भी 2 कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आयरन 2 करूँगी तो यहाँ पर भी इसको 2 करना पड़ेगा, तो जब मैंने इसको 2 किया तो 2 3 6, क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। अब प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर तो क्लोरीन 2 है, तो मैंने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ पर भी 3 कर दिया, 3 2 6। अब देखो बैलेंस हो रहा है, हमने आयरन को 2 किया, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 2 था तो आगे 3 लगा दिया,
तो ये पूरा बैलेंस हो रहा है। इधर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सेम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस करने हैं इक्वेशंस को। अनदर मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक स्केलेटन इक्वेशन लिखने, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स को हमने काउंट कर देना है दोनों साइड्स में। Then find out the suitable numerical coefficient of the molecules of the reactant and then product so that the number of atoms of each element become equal on either side of the equation. Now, सबसे पहले इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन हमने लिख दिया। मैं आपको यहाँ पर अनबैलेंस इक्वेशन, लुक एट दिस अनबैलेंस इक्वेशन। बच्चे यहाँ पर KClO3 है, ठीक है। इक्वेशन बनाए तो ये KCl1 है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर KCl, इधर भी इतने इधर भी इतना, प्लस किया ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन O3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, तो बैलेंस हुआ? बैलेंस नहीं है ये। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करें हम? यहाँ पर O3 है, यहाँ पर 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 तो लगा नहीं सकते, 2 लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 लगा के देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, राइट। और मैंने अब यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो गया, तो मैंने यहाँ पर सब 2 लगा देती हूँ, तो ये क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 है, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 कर दूँ तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब क्या, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब व्हाट अबाउट KCl? यहाँ पर KCl1 है, यहाँ पर KCl2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देती हूँ, इजी। तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ इंफॉर्मेशन कन्वे बाय केमिकल इक्वेशंस। जैसे इक्वेशन है दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस नॉट स्पेसिफाइड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है और वो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर भी बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्कैप हो रहा है आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर से, वो स्कैप होके जा रहा है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन है। दैट 1 molecule of calcium carbonate react with 2 molecules of hydrochloric acid। अगर 1 molecule calcium carbonate react करेगा 2 molecules of hydrochloric acid to form 1 molecule of calcium chloride, 1 molecule of water and 1 molecule of carbon dioxide। यही है बच्चा, यही आपको मिल रहा है। 1 molecule of calcium chloride मिल रहा है, 1 molecule of water, 1 molecule of carbon dioxide। That 100 ग्राम of calcium carbonate, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो है 100 ग्राम का है फॉर एग्जाम्पल ना, और ये रिएक्ट कर रहे हैं 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, दोनों कंबाइन होके। तो मतलब 40 + 71 दोनों कंबाइन होके ये बना रहे हैं 101 ग्राम का कैल्शियम क्लोराइड। वाटर निकला 18 ग्राम, ये निकला 44 ग्राम। अब पूरा ऐड करोगे तो आपको 173 ही मिलेगा। दोनों इक्वेशंस बैलेंस है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशंस क्या है? Ordinarily, a chemical equation does not indicate the physical state of the reactions and the products. This limitation can, however, be remedied by indicating the physical state by putting the letter GIS। ये क्या होता है बच्चा? GLS, सॉरी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जो ये मेंशंस होते हैं ना, जैसे ये देखो इस इक्वेशन में G दिया है, G और L दिया है, तो ये क्या है, लिक्विड को मेंशन कर रहे हैं, ये गैस को मेंशन कर रहे हैं। और आपको हमेशा केमिकल इक्वेशंस में ये मेंशन करना है कि ये गैस है, ये जी करके मेंशन करना है। ये लिमिटेशंस है बच्चा। स्कैपिंग गैस इज इंडिकेट। अब जो स्कैपिंग गैस है उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो ऐसा एरो बन रहा है ना, ये
क्या शो कर रहा है कि गैस क्या हो रही है, स्कैप हो रही है, बाहर निकल रही है, और जो अंदर आ रही है तो उसको प्रिसिपिटेट, अगर प्रिसिपिटेट हो रही है तो उसको डाउनवर्ड एरो के साथ मेंशन करना है आपने। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द स्टार्ट and that of products at the end is not indicate, however it can be given below the formula of the substance. For example, now जो concentration of reactant है start का start and the that of product at the end is not indicated. जैसे ये Cu है प्लस 2H2SO4 बन रहा है, कंसनट्रेट हुआ तो ये CuSO4 के साथ कंबाइन हो गया, CuSO4 कंबाइन हो गया यहाँ पर, लेकिन SO4 कितने 2 है, यहाँ पर सल्फर कितने 2 है, और ऑक्सीजन कितने 2 4 जा 8 है। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है बच्चा, ये कॉपर 1 है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना है 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 4 है, और सल्फर कितने सल्फर 2 है, और ऑक्सीजन कितने 2 4 जा, इसके साथ हो रहे हैं ना 2 4 जा 8, ऑक्सीजन कितने 8 है आपके पास। अब जब हम इस साइड गए तो कॉपर 1 है, कॉपर लिख दिया, सल्फर कितने SO4 S, एक S ले लिया हमने, ऑक्सीजन कितने ले लिया 4 ले लिया, ऑलरेडी 8 है उसमें से 4 हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितने ऑक्सीजन 4 फिर से बच गए। ऑक्सीजन जब 4 बचे तो हमने क्या किया, एक S इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर तो एक ही S है, और ऑलरेडी हमारे पास कितनी S है 2 S है, एक S यहाँ गया, एक S यहाँ गया, और एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ले लिए, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 4 5 6, 2 रह गए, उसके बाद वाटर बना दिया क्योंकि हाइड्रोजन था H2H2 और ऑक्सीजन 2O, 2 ऑक्सीजन बन गया तो 2H2O। तो इन दिस वे आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है बच्चा, और पहले आप मेंशन कर लो आपके पास क्या क्या है, उसके बाद उससे क्या बन सकता है। ओके, conditions necessary to start and to continue the reactions are not given. For example, the use of catalyst, temperature and pressure, this information is given above and below the sign of equality. अगर आपको कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ इस एग्जांपल में हमने प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ किया और कितनी डिग्री सेल्सियस 450 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको मेंशन करना है एरो के ऊपर। ठीक है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर इस तरीके का रिएक्शन है, देख रहे हैं आपको ये दोनों, ये मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन है, ये रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन है, रिवर्स हो सकता है, और ये इक्वालिटी का रिएक्शन होता है। ऑर्डिनरली इट इज़ नॉट क्लियर वेदर हीट इज इवॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी क्लियर नहीं है कि जो हीट है इवॉल्व हो रहा है, एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे N2 + O2 2NO 43,000 कैलोरीज क्या हो रहा है यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, C + O2 CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। इन फर्स्ट इक्वेशन 43,000 कैलोरीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सेकेंड इक्वेशन में जो प्लस हो रहा है तो मतलब वो क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। Writing word equations in order to overcome some disadvantages of chemical reaction, it is important to write word equation following the chemical equation. कुछ चीज़ों को ओवरकम करने के लिए केमिकल रिएक्शंस की, तो हम क्या करें, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिख रहे हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन, लेकिन अगर इसको मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन लिखें तो जिंक, उसको सल्फ्यूरिक एसिड है वो बना जिंक सल्फेट, प्लस जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, विस्कैप हो रहा है, तो स्कैल्पल इक्वेशन बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द चैप्टर। ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट अनबैलेंस इक्वेशंस एट होम। So this is the exercise. The symbol of nitrogen is N2. हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, इसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे की वैलेंसी निकालते हैं। द करेक्ट फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या था, Na2O। ठीक है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ए केमिकल इक्वेशन इज, कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है केमिकल इक्वेशन, कौन सा रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लिमिटेशंस क्या है केमिकल इक्वेशन की, द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज द केमिकल
इक्वेशन जिसको हमने फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, NaCl है, ठीक है, गिव्स हमको NaNO3 दे दिया, तो NaCl के साथ क्या रिएक्ट होगा कि हमको Na3 मिल सकता है। NaCl के साथ जब हम AgNO3 को रिएक्ट करेंगे तो जो AgCl इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और NaNO3 इधर निकल जाएगा। FeSO4 और इधर है FeOH2 हमको दे दिया। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पास FeSO4 है, यहाँ पास OH2 है, OH2 है तो वाटर के साथ अगर हम इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वाटर के साथ मिलके FeOH2 बनाता है, तो ये FeSO4 को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो FeOH2 बना प्लस वाटर निकल गया। Al2O3, Al2O3 इधर क्या मिल रहे हैं हमको 2AlCl3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर तो कहीं पर भी Cl दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो हमने Cl लगाना पड़ेगा। तो अब Cl क्लोरीन तो नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया HCl है, जो क्लोरिक एसिड लगाया HCl, Cl यहाँ पर आ गया Cl, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ये कितने है 2 है 2Al, और यहाँ पर Cl कितने हैं 3 है, यहाँ पर 3 तो मैं लगा नहीं सकती, अगर 3 लगाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं 6 लगा दूँ तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया और वाटर निकाल दिया। वाटर के कितने निकलेगा 3H2O, क्यों यहाँ पर H कितने 6 है, तो इस तरीके से H2 ऑक्सीजन कितने 3 है, तो 3H2O। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है बच्चा, ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चा, यहाँ पर PbNO3 2 प्लस Na2SO4 गिव्स। अब ये क्या मिलेगा आपको, कैसे इसको बैलेंस करें। ये जो Pb है इसको SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ये लेड सल्फेट बना देगा PbSO4, ये हो गया हमारा, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, बचा क्या Na2NO3। तो हमको पता है कि ये क्या बन जाता है NaNO3 बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। तो यहाँ पास Na कितने 2 है, तो यहाँ पास मैं 2 लगा देती हूँ। यहाँ पे NO3 कितने है, ये भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट वन मोर FeCl2 प्लस 2 NaOH गिव्स। ये जो Fe है ये OH के साथ कंबाइन हो जाएगा FeOH। OH कितने हैं हमारे पास, OH2 है ना, OH2 2 लगा दिया, प्लस बचा क्या, यहाँ पास Na है राइट, और Cl है, Na भी 2 है Cl भी 2 है, तो दोनों को कंबाइन कर दो NaCl, आगे 2 लगा दो 2 NaCl। नेक्स्ट CuO प्लस डैश गिव्स CuCl2 प्लस डैश। अब Cu है हमारे पास, तो Cu यहाँ पास चला गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पास लगा देती हूँ, ठीक है। और ये Cl2 कहाँ से आया होगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर Cl2 चाहिए मेरे को, 2 क्लोरीन तो ले नहीं सकती, तो यहाँ पास मैं HCl ले लेती हूँ। अब HCl ले लिया तो यहाँ पास एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर Cl मैंने इधर लगा दिया, 2 क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, तो मैं यहाँ पे इसको वाटर बना देती हूँ, तो H2O। NaOH प्लस डैश प्लस NaCl प्लस डैश, Na निकाल दिया, Cl है तो Cl कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो ही तो Cl आएगा, तो मैं HCl ऐड कर देती हूँ। Cl यहाँ पास आ गया, Na भी आ गया, एक यहाँ पास H है, 2 H, कितने H हो गए 2H और एक O है, तो 2H2O वाटर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस बैलेंसिंग इक्वेशंस। नाउ ट्रू और फॉल्स। सिम्बॉल्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। जो सिम्बॉल्स है वो सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने यूज़ किए थे, नो जे ब्रिजिलियस ने यूज़ किए थे। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, जे ब्रिजिलियस, और इसका आंसर है फॉल्स। टू स्टडी द नेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल्स की नॉलेज के लिए आपको पहले फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रू। केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व इन द इनपुट और रिलीज ऑफ एनर्जी। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ तो एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, यहाँ तो रिलीज होगी, इसलिए आंसर फॉल्स, और ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट।
The molecular formula of baking soda is Na2O3. No, molecular form baking soda क्या होता है? NaHCO3. This is your right statement. The law of constant proportion is involved in balancing of chemical equation. False. क्या कौन सा लॉ यूज होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ यूज होता है केमिकल को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए इसका आंसर फॉल्स. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट. Okay students, revise this chapter and try to understand this balancing equation. Okay, thank you.